Alright जी, let's have a very quick recap of chemical energetics. ठीक है जी, we have studied this chapter, लेकिन एक quickly आज एक recap देती हूँ so that we can solve the questions as well. ठीक है. So first we need to categorize the changes into two: chemical change and physical change. Chemical change is the one in which something new is formed, and physical change is the one in which nothing new is formed. So we can divide the changes into two categories: exothermic and endothermic, on the basis of thermal energy. The process in which heat energy or thermal energy is released is called as exothermic, and the one in which it is required is called as endothermic. Then we talk about another thing which is called as enthalpy. So enthalpy actually means energy. So what happens in an exothermic reaction? The enthalpy of reactants is converted into two parts. One part goes into the enthalpy of products and the second part is released. So as a result, the enthalpy of reactants is greater than the enthalpy of products. और एंडो में क्या होता है बेटा? We have the reverse. The reactants have some enthalpy. They then gain energy and after that they are converted into products. So the enthalpy of products is equal to the enthalpy of reactants plus some amount of energy. ठीक है? Then we study another terminology which is called as delta H enthalpy change. So delta H or enthalpy change means change in enthalpy, which means flow of thermal energy in the reaction. So either the flow is towards the inside of the reaction or the outside. ठीक है? जो flow है ना बेटा, या वो in हो सकते हैं या वो out. जैसे exo में it is out और endo में it is in. So delta H is negative, which means exo में negative क्यों है बेटा? Which means that energy is given out. और enthalpy change endothermic में positive क्यों है? Because energy is absorbed. ठीक है? So delta H भी हमने introduce करा दिया. We know that as a result of exothermic reaction, the temperature of the surrounding, including the reaction mixture, will increase. और endo में क्या होगा? Falls. The temperature of the surroundings, including the reaction mixture, falls. Then we have drawn the energy level diagrams. These diagram only specifies the levels of reactants and products, but these are the bases against which we make enthalpy. वो जो energy profile diagrams है जिसमें enthalpy, एक्टिवेशन एनर्जी वो सब लेबल करते हैं. तो बेसिकली सबसे बेसिक डायग्राम्स हैं लेवल डायग्राम्स, जो कि एक बेस बनाती हैं सो दैट वी कैन ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स. ठीक है? सो दे ओनली स्पेसिफाई द लेवल. देन वी हैव स्टडीड अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज़ द नेसेसरी एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. ठीक है जी? दिस इज ऑलवेज द एनर्जी विच इज़ टेकन इन. सो एक्टिवेशन एनर्जी, नो मैटर वट एवर एक्सो हो या एंडो हो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट अ रिएक्शन इज ओवरऑल एक्सो और इट इज़ ओवरऑल एंडो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल एनर्जीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है? सो देर आर टू एनर्जीज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन. नंबर वन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, एंड इन द सेम वे एनर्जी इज रिलीज्ड बाय मेकिंग बॉन्ड्स. सो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब बॉन्ड टूटते हैं, और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स न्यूली फॉर्म्ड. ठीक है? ये बॉन्ड्स अनइक्वल नहीं होते, बट देयर एनर्जीज आर अनइक्वल. सो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस ईदर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और इट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है? यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. वही आपका नेट चेंज होता है इन द रिएक्शन. सो दैट्स वाई आर रिएक्शन इज ईदर ओवरऑल एक्सो और एंडो. ठीक है? उसके बाद आई टोल्ड यू दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स के वाई आर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या वाई आर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. सो इस पर आपने क्या बताना है? यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ द प्रोसेस दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक. उसके बाद अगर ओवरऑल एक्सो है तो कौन सी एनर्जी ग्रेटर होगी? रिलीज्ड. ठीक है? सो द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज ग्रेटर. और अगर वो बोले कि ओवरऑल एंडोथर्मिक है तो फिर कौन सी एनर्जी ग्रेटर होगी? जो एब्जॉर्ब होगी. ठीक है? सो आपने फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग की नेचर डिफाइन करें. सेकेंड मार्क किस चीज़ का मिलेगा? जस्ट टू कंपेयर द बोथ एनर्जीज, दैट विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, या ज़्यादा रिक्वायर्ड है या ज़्यादा रिलीज्ड है. आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हम्प. आप नोटिस करें ये एक्सो हो या एंडो हो, आपने क्या इंट्रोड्यूस कराया इसमें? एक हम्प. ठीक है जी? So basically this is the right diagram which has the concept of activation energy, क्योंकि कोई भी रिएक्शन बगैर एक्टिवेशन एनर्जी के स्टार्ट नहीं होता. ठीक है जी? सो रिएक्टेंट्स हैं ऊपर, प्रोडक्ट्स हैं नीचे, एक हम्प बनता है. हम्प क्या बताता है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम्प इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स.
जैसे हम के पीक तक पहुंचते हैं उसके बाद क्या होता है, वी हैव टू ड्रॉ इट डाउनवर्ड. क्यों बेटा डाउनवर्ड ड्रॉ करना है? बिकॉज एनर्जी वुड बी रिलीज, बिकॉज बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड. उसके बाद अगर आप कैटलाइज्ड रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, दैट हम्प विल बी रिड्यूस्ड. और उसके बाद देयर आर 2 इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स, नंबर 1 डेल्टा एच एंड नंबर 2 एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है जी. एक्टिवेशन एनर्जी को आप कहाँ से कहाँ तक लेबल करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी इज लेबल्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम्प. ठीक है जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज लेबल्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम्प. और इसके बाद की जो आपकी एनर्जी है वो कौन सी वाली है? डेल्टा एच. डेल्टा एच की लेबलिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. ठीक है. इफ द एरो इज गोइंग डाउनवर्ड इन द डायग्राम इट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड. और अगर एरो ऊपर जा रहा हो तो इसका क्या मतलब है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है जी. और रिमेंबर वन थिंग, कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा? द हम्प विल बी रिड्यूस्ड. डेल्टा एच रिमेन सेम बट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. इसकी एक्सिस की लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग के भी 2 मार्क्स होते हैं. आपके लेवल्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के. फिर आपकी लेबलिंग इसमें ज़रूरी है. ठीक है जी. और नो मैटर वट एवर एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. बट डेल्टा एच डिफाइंस द, एक्चुअली डेल्टा एच सही से डिफाइन करता है वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और एंडो. डेल्टा एच नेगेटिव मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, एरो डाउनवर्ड होगा. और डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स आपकी एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब हो रही है, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी. सो उस केस में डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा. और ये मैंने लिख दिया बेटा कैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में क्या होगा. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज. सो यू नीड टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच. डेल्टा एच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 2 वेज. नंबर 1 तरीका क्या बेटा इसका, यू हैव टू सबट्रैक्ट द 2 एंथैल्पीज. सो डेल्टा एच में आप 2 एंथैल्पीज को सबट्रैक्ट कर सकते हैं. और किन 2 एंथैल्पीज को सबट्रैक्ट करेंगे? एच पी माइनस एच आर. बट रिमेंबर दिस इज ट्रू व्हेन वी टॉक अबाउट एंथैल्पीज. जब एंथैल्पीज को माइनस करेंगे तो वी विल हैव एच पी माइनस एच आर. एच पी मीन्स द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एच आर मीन्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. बॉन्ड एनर्जीज में द फॉर्मूला इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. डेल्टा एच in terms of bond energy is bond energy of reactants minus bond energy of products. Alright, so we were talking about bond energies. Bond energies में अगर देखें तो क्या होगा बेटा? Bond energy of reactants minus bond energy of products. So delta H के 2 formulas थे. पहला formula क्या था? In terms of enthalpies. Enthalpies में क्या था बेटा? HP minus HR. But in terms of bond energies क्या होगा? मैंने भी आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज ऑलवेज द एनर्जी विच इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ टेकन इन. और जो एनर्जी रिलीज होती है इन मेकिंग बॉन्ड्स दैट एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. तो देखें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक न्यू बॉन्ड्स. अगर आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में से बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस करोगे तो तब जाके यू विल गेट द राइट साइन. क्यों? अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी ब्रेक करने वाली एनर्जी कम है और रिलीज वाली ज़्यादा है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका? हद होगी. बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स छोटी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा? नेगेटिव, विच मीन्स मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. और अगर आपकी ब्रेकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और रिलीज की बहुत कम है तो ओवरऑल डेल्टा एच का ये जो आंसर है बॉन्ड एनर्जीज के थ्रू क्या आएगा? पॉजिटिव, विच मीन्स मोर एनर्जी इज टेकन in to break the bonds. So make sure one thing in terms of enthalpies it is different. प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करो. बट अगर बॉन्ड एनर्जीज की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस के साथ है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स किस साइन के साथ है? माइनस के साथ है. ठीक है. बिकॉज रिक्वायर्ड वाली पॉजिटिव होती है और रिलीज वाली नेगेटिव. तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द राइट अमाउंट ऑफ डेल्टा एच which is actually needed in that reaction. उसके बाद हमने कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनको गो थ्रू किया था. वी हैव जस्ट स्टडीड कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो H2 मीन्स 1 HH बॉन्ड. ठीक है. Cl2 मीन्स 1 Cl बॉन्ड. HCl मीन्स 1 HCl बॉन्ड. H2O मीन्स 2 OH बॉन्ड्स. स्ट्रक्चर से नजर आ रहा है ना? CO2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स. ठीक है जी. कार्बन डबल बॉन्ड O वाले कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं.
एंड यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट सिंगल बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होती है, डबल बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होती है. सो आप हमेशा अगर डबल बॉन्ड है तो यू विल यूज़ द राइट एनर्जी जो डबल बॉन्ड की है. सिंगल बॉन्ड की एनर्जी को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके डबल या ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी नहीं आती. डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स. अमोनिया में वी हैव 3 NH बॉन्ड्स. इन CH4 वी हैव ऑल राइट. और CH4 में क्या था? CH4 में वी हैव 4 CH बॉन्ड्स. N2 में क्या बेटा? वी हैव 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. और O2 में वी हैव 1 double covalent bond between the 2 oxygen atoms. So your task is that first you need to draw the structures. देखो बेटा, structures के बगैर you will never be able to get to know कि कितने आपके bonds हैं और कौन कौन से bonds हैं. ठीक है, so covalent के structures बहुत helpful हैं. You might be given their equation, you might not be given the structures or might be given the structures. Depend करता है. equation तो हमेशा मिलेगी but structures कभी मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे. जैसे इस केस में the structures are given to you. अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखें तो वी हैव 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स. वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने HH बॉन्ड्स हैं? 3 HH बॉन्ड्स. और इसी तरह अगर वी लुक एट द प्रोडक्ट्स वी हैव अमोनिया NH3. एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में वी हैव 3 NH बॉन्ड्स. टू मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 6 NH बॉन्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपके बॉन्ड्स कितने हैं. सो रिएक्टेंट साइड में है 1 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और 3 HH बॉन्ड्स हैं. प्रोडक्ट में आई हैव 6 NH बॉन्ड्स. सो लेट्स कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. 1 ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स. व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N? 944. सो बिकॉज इट इज 1 बॉन्ड तो 1 टाइम्स 944 प्लस बॉन्ड एनर्जी और क्या है बेटा? 3 HH बॉन्ड्स हैं. सो व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH? 436. HH बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी 436 है. 3 इस तरह के बॉन्ड्स हैं तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स 436. So by adding them we can get the bond energy of reactants. So 2252 kilojoule are required to break the bonds. On the other hand products में क्या है बेटा? We have 6 NH bonds. ये देखें structure में we have 6 NH bonds. So what is the bond energy of NH? 391. 6 times 391 gives me 2346 kilojoule. अब ये 2346 किलोजूल आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड. ठीक है जी. अब आप जरा ध्यान से देखें, 2252 रिक्वायर्ड थी और 2352 रिलीज्ड, 2346 सॉरी रिलीज्ड है. 2252 रिक्वायर्ड थी और 2346 रिलीज है. तो अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव. अब नेगेटिव आना चाहिए ना बेटा, बिकॉज लेस इज रिक्वायर्ड एंड मोर इज रिलीज्ड. तो दैट्स वाई द साइन शुड बी नेगेटिव. येस द साइन इज नेगेटिव, इट इज -94 किलो जूल पर मोल. ठीक है जी. सो बी वेरी कॉन्शियस. आपने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को सबट्रैक्ट करना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से. ठीक है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स मीन द एनर्जी रिलीज्ड इन मेकिंग बॉन्ड्स. सो द एनर्जी विच इज रिलीज शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव और जो रिक्वायर्ड है वो कैसे कंसिडर होनी चाहिए? पॉजिटिव. इसीलिए रिक्वायर्ड माइनस रिलीज करते हैं सो दैट वी कैन गेट द राइट साइन फॉर द डेल्टा एच. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ना आपको टिपिकली एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनर्जी कैलकुलेशंस के. ये भी आपको सीखने चाहिए. इसमें यू यूज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड यू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स. सो दिस क्वेश्चन हैज़ 2 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर डेटा इज गिवन टू यू, आपको वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन देते हैं. दे टेल यू अबाउट द डेल्टा एच के इतनी एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड है. ठीक है. उसके बाद वो बताते हैं कि दे हैव दिस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो बताएं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ मोल एंड देन वी हैव टू यूज अ रेशियो मेथड टू गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड. सो दिस type of question has 2 main steps. Number 1, whatever data is given to you, convert the given data into number of moles. You remember we have 3 formulas to calculate moles. Number 1, moles is equals to mass in gram over AR/mR. This formula is applicable for solids, liquids and gases. उसके बाद second formula क्या है बेटा? moles is equals to V by 24. This formula is applicable for only gases. And then we have the third one, which is moles is equals to CV. CV stands for concentration and volume. ठीक है, ये product है.
एंड द फॉर्मूला CV इज एप्लीकेबल फॉर एक्वस सोल्यूशंस, ठीक है, ये सिर्फ सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है. अब आपने सबसे पहले यू हैव टू चूज़ अ राइट फार्मूला. स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द सूटेबल और द अप्रोप्रिएट फार्मूला, ठीक है. उसके बाद यू विल यूज़ अनदर स्टेप. वो क्या है बेटा? आपका मोल एनर्जी रिलेशनशिप. आपने अपनी इक्वेशन के अंदर से जिस सब्सटेंस के आपने मोल्स फाइंड किए हैं उस सब्सटेंस के मोल्स चेक करने हैं जो कि बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है इक्वेशन से, ठीक है, और उसके अगेंस्ट डेल्टा एच की वैल्यू देखनी है. और फिर आपके स्टेप 1 में जितने मोल्स आए हैं उन मोल्स के अगेंस्ट आपने देख लेना कितनी एनर्जी रिलीज यहाँ रिक्वायर्ड है. मैं आपको इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है. और एक बात याद रखनी है, वट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जो गिवन होती है, दिस इज़ एक्चुअली एज पर द मोल्स गिवन इन द इक्वेशन. जो मोल्स या बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स आपकी इक्वेशन में दिए होते हैं ना, डेल्टा एच उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, एज पर द मोल्स. इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स, इक्वेशन के जो बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स हैं. जैसे मैं आपको अभी समझाती हूँ इसको एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके. आई गेस स्टक हो गया. ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा. एथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एथेनॉल रिलीजेज 1350 किलो जूल ऑफ एनर्जी. अच्छा, ये देखिए बेटा, ये 1 मोल ऑफ एथेनॉल के अगेंस्ट है, ठीक है. आप ज़रा इस इक्वेशन में बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स देखें. जब एथेनॉल के 1 मोल हैं तो कोई मुझे बताएगा O2 के कितने मोल्स हैं? 3. तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है 1350, ये एथेनॉल की 1 मोल के अगेंस्ट है, बट O2 के कितने मोल्स के अगेंस्ट है? 3. ये वाटर के कितने मोल्स के अगेंस्ट है? 3. और ये CO2 के कितने मोल्स के अगेंस्ट है? 2. तो ये सबके 1 मोल के अगेंस्ट नहीं होती. ये कितने मोल्स के अगेंस्ट होती है? ये बेसिकली एग्जैक्टली उन मोल्स के अगेंस्ट होती है जो आपको बैलेंस इक्वेशन में गिवन होते हैं, ठीक है. अगर एथेनॉल के 1 मोल के अगेंस्ट है तो बाकियों के O2 के 3, वाटर के भी 3, बट CO2 के कितने मोल्स के अगेंस्ट है? 2 मोल्स के अगेंस्ट. अब जरा आप सवाल गौर से पढ़ना. अ सैंपल ऑफ एथेनॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन टू मेक 0.254 dm³ ऑफ CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.24 dm³ प्रोड्यूस हो रहा है. मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन किलो जूल इन दिस रिएक्शन. वो पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन में किलो जूल में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बताएं. लेकिन कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? डेटा क्या गिवन है आपको? ये डेटा गिवन है 0.24 dm³ ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है जी. अब सबसे पहले आपने पूरे क्वेश्चन में देखना होता है आपको डेटा कौन सा दिया हुआ है. डेटा एक ही दिया हुआ है, दैट इज 0.24 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप मुझे बताएं व्हाट इज द राइट और सूटेबल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. अच्छा, हमें मोल्स ही क्यों कैलकुलेट करने हैं? आप नोटिस करो, अभी मैंने आपको इक्वेशन में बताया था, और क्या बताया था कि जो 1350 वैल्यू दी हुई है आपको, ये किसके अगेंस्ट दी हुई है? मोल्स. किसके मोल्स? सबके मोल्स. लेकिन कौन से मोल्स? जो इक्वेशन के अंदर मेंशन्ड है. जैसे एथेनॉल के 1, O2 के 3, वाटर के भी 3 और CO2 के 2 मोल्स के अगेंस्ट एनर्जी है, ठीक है. तो इसीलिए जो आपका रिलेशनशिप है एनर्जी का वो विद मोल्स है. तो अगर आपको कोई भी गिवन डेटा मिलता है वॉल्यूम में, ग्राम्स में, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू मोल्स. क्यों मोल्स में करना ज़रूरी है? क्योंकि एनर्जी का रिलेशनशिप किसके साथ है बेटा? मोल्स के साथ है, ठीक है. आप मैस वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के साथ उसको रिलेट नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स. सो द डेटा गिवन टू मी इज वॉल्यूम. वॉल्यूम है 0.24, so I'm going to find out the moles. 0.24 divided by 24, it gives me 0.01 moles. तो ये बेटा आपके कितने मोल्स आ गए CO2 के? 0.01 मोल्स आ गए, ठीक है. अब रिलेशनशिप क्या? आप जल्दी से इक्वेशन में जाएं और देख के इक्वेशन में बताएं कि इक्वेशन में कितने मोल्स थे. बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने थे अगर आपको याद है? 2. ठीक है, आपके कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे. आई डोंट नो इसको क्या हो गया. देखें जी, 2 मोल्स थे. तो ये जो 1350 की एनर्जी थी,
जी ये 1350 किलो जूल वाली जो एनर्जी थी, ये अभी आपने किसके मोल्स फाइंड किए स्टेप 1 में? CO2 के ना। अगर आप एथेनॉल के फाइंड करते हैं तो कितने मोल्स के अगेंस्ट ही एनर्जी लिखते हैं? 1। अगर आप O2 के मोल्स फाइंड करते हैं तो किसके अगेंस्ट लिखते हैं? 3। H2O के करते हैं तो 3 के अगेंस्ट लिखते हैं। बट आपने किसके मोल्स कैलकुलेट किए स्टेप 1 में? CO2 के, तो उसके कितने मोल्स हैं? 2। तो 2 मोल्स के अगेंस्ट 1350 एनर्जी। अभी कितने मोल्स निकले हैं मेरे स्टेप 1 में? 0.01। तो उसके अगेंस्ट क्या एनर्जी होगी? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो क्या एनर्जी आ रही है? 6.75 किलो जूल। फिर से इसको करूं एक्सप्लेन, समझ आ गई है? ठीक है, सबसे पहला क्या स्टेप है बताइए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप 1 में आपने अपने गिवन डेटा से मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जो डेल्टा एच की वैल्यू दी होती है वो किसके अगेंस्ट होती है? जी कौन से मोल्स के अगेंस्ट होती है? जो इक्वेशन में मेंशन्ड होते हैं उतने मोल्स के अगेंस्ट होती है। तो ये जो उसने बोला कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एथेनॉल रिलीजेस 1350 किलो जूल मोल ऑफ एनर्जी, 1350 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब ये जो 1350 किलो जूल ऑफ एनर्जी है ये एथेनॉल के 1 मोल के अगेंस्ट है। आप देख के बताएं, जब एथेनॉल के 1 मोल होते हैं तो O2 के 3 नहीं होते, वाटर के भी 3 होते हैं, और CO2 के क्या होते हैं? 2। तो ये जो जिसके मोल्स मेंशन्ड है ये उतने उन मोल्स की एनर्जी है। एथेनॉल के 1 है लेकिन O2 के ये 3 मोल्स की एनर्जी और CO2 के ये 2 मोल्स की एनर्जी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सो गिवन डेटा क्या है बेटा आपका? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को मोल्स में कैसे चेंज करेंगे? V/24, ठीक है। तो V/24 आपने कर लिया। उसके बाद आपके मोल्स आ गए 0.01। अब आपने क्या करना है? मोल एनर्जी का रिलेशनशिप यूज करना है अगेंस्ट 2 मोल्स ऑफ CO2। हम किसके मोल्स यूज कर रहे हैं इस वक्त? CO2 के। अगेंस्ट 2 मोल्स ऑफ CO2 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? 1350। तो आपने भी 0.01 फाइंड किया, तो उसके अगेंस्ट आप फाइंड कर सकते हैं। सबको आता है रेशो मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अच्छा ये एक और एग्जाम्पल थी, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, एक और कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जीज का था बेटा ये क्वेश्चन। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज एक्सोथर्मिक। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन H2 plus Cl2 makes 2HCl। अब देखिए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन इज गिवन बट द स्ट्रक्चर्स आर नॉट ड्रॉन। तो डोंट यू थिंक आपको स्ट्रक्चर्स खुद आने चाहिए? H2 मीन्स HH का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 मीन्स Cl का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड व्हाट इज HCl? अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl। एंड मेक श्योर वन थिंग, फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 2। 2 मीन्स हाउ मेनी बॉन्ड्स वी हैव? 2 बॉन्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले उसने बोला स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सोथर्मिक, हो जाएगा वो एनर्जी उसमें रिलीज होती है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये टेबल में इसने बॉन्ड एनर्जीज दे दी हैं, HH की दी है और HCl की दी है। डोंट यू थिंक एक बॉन्ड एनर्जी मिसिंग है? Cl की बॉन्ड एनर्जी मिसिंग है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन भी ये दिया है, द टेबल गिव्स द बॉन्ड एनर्जीज फॉर द HH एंड HCl बॉन्ड्स। यूज द इक्वेशन एंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड। Cl बॉन्ड की एनर्जी मैंने खुद निकालनी है, और गौर से देखे क्या गिवन है मुझे? डेल्टा एच। अभी तक मुझे डेल्टा एच गिवन नहीं था, डेल्टा एच मुझे खुद फाइंड करना होता था, बट नाउ इट इज गिवन टू मी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। चले रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी जल्दी से निकालते हैं। HH की क्या है बेटा? 436। एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ HH वी हैव? 1। तो ये देखिए 1 टाइम्स 436 आ गया, ठीक है। आगे Cl के कितने बॉन्ड्स थे? 1। तो ये 1 टाइम्स x आ गया। समझे x क्या है बेटा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। सो ये 1 टाइम्स x आ गया। क्या बन गया आंसर? 436 प्लस x। व्हाट इज दिस? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे चलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में जाएं जरा, कितने बॉन्ड्स थे H और Cl वाले? 2 बॉन्ड्स थे। तो 2 टाइम्स HCl की बॉन्ड एनर्जी विच इज 431, 862 आ गया। अब डेल्टा H इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। डेल्टा H है -184, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है 436 प्लस x, जस्ट पुट द वैल्यूज, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है 862। आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x इज 242 किलो जूल पर मोल। फॉर्मूला मैंने वही यूज़ की है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डेल्टा एच कैलकुलेट नहीं करना बल्कि क्या कैलकुलेट करना है? बॉन्ड
एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। बस फ़र्क कितना होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की भी वैल्यू और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिर्फ डेल्टा एच कैलकुलेशन के आए हैं, अभी तक ये भी नहीं आया, लेकिन यही मोस्ट एडवांस क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू योर सिलेबस 2023 में, सो अभी तक जो वैरायटी है उसमें सिर्फ उसने डेल्टा एच ही आपसे कैलकुलेट करवाया, ठीक है। बट आपको डेल्टा एच के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि अगर कभी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। आई यूज़ अगेन द सेम फार्मूला, बट जितने बॉन्ड्स हैं ना और जिसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, अगर एक बॉन्ड है तो 1 टाइम्स एक्स कर दो, 2 बॉन्ड्स है तो 2 टाइम्स एक्स कर दो, सिंपल। और सेम फार्मूला यूज़ करो जो डेल्टा एच का फार्मूला होता है, एंड जस्ट फाइंड योर आंसर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?